what some people think. This is a kind of scarcity in someone to express the humility. For example, Srila Bhaktivinoda Thakur's song, Amar Bhajan, Amar Jivan Sada Pape Rata, Nahi Ko Purne Ko Lesh. Srila Bhaktivinoda Thakur is expressing, my whole life spent in performing sinful activities. If Srila Bhaktivinoda Thakur is saying this, for him this is humility, and for me this is reality. For many of us this is reality, and for him this is humility. So that makes a lot of difference. And if Guru Maharaj is expressing, or any Acharya expressing the mood of humility, it is not that he is not complete. He is complete, but he is expressing incompleteness. This is our Guru Parampara. Just like if we say our Guru Parampara begins with Shri Madhavendra Puripal. How Shri Madhavendra Puripal was so complete and meditating on the pastimes of Radha and Krishna. But when he was manifesting the sacred pastime, he is expressing the highest limit of humility by saying, Are Deen Dayal Nath He Mathura Nath Kada Valotushi. O Deen Dayal, He Mathura Nath, O the Lord of Mathura, where are you, where are you? I want to see you. Extend your darshans to me. That doesn't mean that Shri Madhavendra Puripal is not seeing the Mathura Nath Krishna. He is expressing humility, being totally complete, but expressing incompleteness. This is called humility. And similarly, Shri Sanatana Goswami Pad is expressing, Na prem shavanadi bhakti apiva yoga atha vaishnavo jnana vashud karma bhakti apyasa jativa hina tika sadhike toi achet rul sati he gopijan vallabh yathate haha madvishma. Shri Sanatana Goswami Pad, to whom Shri Mahaprabhu said, Sanatan, your body is not your property, it's my property, it's my asset. So that's the glories of Sanatana Goswami Pad. But while expressing his identity, Shri Sanatana Goswami Pad is saying, I've never performed Navnita Bhakti, the 9 years of Bhakti. I've never performed any pious deed in my life. I have no prem in me. But I have only one hope, and that, hey Gopijan Vallabh, O the beloved of the Gopis, Krishna, you always take care of your devotees. Only with that hope I am surviving. This is not, this is the humility. It's not that he is incomplete, it's totally complete in nature. Then Shri Chaitanya Mahaprabhu, we followers of Shri Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu, out of humility, he is showing and expressing by saying, Na prema gandha asti durapa mai haro. I have not a tinge of prema in me. What is this? This is called humility. Shri Rupa Goswami Pad, who has established the inner heart desire of Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mano Vishnav Stapita Mena Bhutale. That Shri Rupa Goswami Pad, who knows the inner heart desire of Mahaprabhu, but while expressing his moods, Shri Rupa Goswami Pad is saying, Bhakti rudanchati yaddipe Madhav, na koi mam tila matri. O Madhav, I am not bhakti on the size of a sesame seed. How we can believe he is telling the truth? This is called humility. Then Shri Krishnadas Kaviraj Goswami. So all our acharyas, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita, who has described the nectar of Chaitanya Leela, Shri Chaitanya Charitamrita, one who has described the nectar of Govind Leela, Govind Leelamrita, but while expressing himself, his identity, Shri Kaviraj Goswami is saying, Puri se कीट भई से मुई से लागिश, जगाई मदाई भई के मुई से पापेश, मोर नाम सुने जही तार पुण्य खई,
मोर नाम लेजे तार पाप है, एमन निर्धन मोरे केवल कृपा करे, एक निर्धन बिना जगत भिखारी. I'm more lowly than a worm in a stool. I'm more sinful than Janain Madain. Anyone who utters my name, all his eyes deeds will go in vain. And anyone who hears my name incurs sinful activities. This is how Shri Kaviraj Goswami is expressing. This is humility. Srila Bhakti Thakur, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and in same Guru Parampara, which Shri Guru Maharaj is also expressing this humility. That doesn't mean there is any incompleteness in that. That shows the expression of an Acharya, and especially Guru Maharaj, who is embodiment of humility. Just Maharaj, one point. Once upon a time, Guru Maharaj, along with his sevak, I suppose it was Buddhan Maharaj, I suppose, I assume, and they were in local train from Krishnanagar coming to Calcutta. So Guru Maharaj was shaven, he has no hairs because of his advanced age. And when he was in a train, along with his sevak, some local people from Navadip, they also boarded a train, and they came to tease Guru Maharaj in a mood of teasing by rubbing their hands on the head of Guru Maharaj like this. Expression of teasing there. And whoever the sevak was, maybe Maharaji was there, he raged with anger, stood up to fight with those local people. But Guru Maharaj stopped them. No. And see what's the vision of Shri Guru Maharaj. Guru Maharaj said, they are Dham Vasis. They are inhabitants of Navadip Dham. They are giving me blessings. What is your problem with that? Sit down. I am getting the blessings of Navadip Dham Vasis. See, even those people who have no Shraddha and they are teasing sadhus, but the vision of Shri Guru Maharaj is, what vision? They are Dham Vasis. This is the expression of Nityam Bhagavats, where they see the presence of the Lord in everyone, and everyone in the Lord. That's the glories of Shri Guru Maharaj. His vision, his expression, his speech, everything is full of complete humility. That's why his embodiment of the Nadapi Sunichena, the Rodapi Saheshana, Amanina Manadina, Kirtane Sudhana. Shri Guru Maharaj ki जोर से बोलो गुरु महाराज की। अरे अभी भंडारा होगा थोड़ी देर में, बोलो गुरु महाराज की। अच्छा, इनके बाद अभी मैं पूज्यपाद भक्ति रक्षक त्रिपुरा महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज को कुछ बोलना। अभी अभी हम त्रिपुरा महाराज जी से श्रवण कर रहे थे, और सभी गौड़ीय समाज में गुरु महाराज के संबंध में कहा जाता है, अमानी ना मान लेना कीर्तने सदा हरि। ये थोड़ा कठिन हो जाता है सबके लिए, गुरु महाराज के लिए बहुत सरल। एक दो उदाहरण से बतलाता हूं। एक बार एक नव युवक परम पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के निकट हरि कथा श्रवण करने आते थे, और सुनते सुनते महाराज जी के श्री संत गोस्वामी महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा हो गई। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि इनसे भी श्रेष्ठ, इनके भी शिक्षक गुरु श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी इस जगत में विद्यमान हैं, पुरी में रहते हैं, और वो ब्राह्मण है। ये बालक ये सुनकर गुरु महाराज जी के निकट आया और आकर कहने लगा, आप मुझको दीक्षा प्रदान कीजिए। गुरु महाराज ने पूछा, अच्छा। पहले गुरु महाराज जी पूछते थे, कहां से पता लगा, कितने दिन हरि कथा सुनी, किन से हरि कथा सुनी, ये सब विचार सुनते थे। तो पता लगा कि लगभग 2 वर्ष से श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा, तो फिर उनसे दीक्षा क्यों नहीं लेते? जब 2 वर्ष से आप उनसे कथा सुन रहे हो तो उन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए। तो उस बालक ने कहा, नहीं, मैं आपसे दीक्षा लूंगा। तो गुरु महाराज ने पूछा, क्यों? बोले, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। सुनने के साथ साथ गुरु महाराज इतना जोर से क्रोध किए, ये तुमने आज जो बोला है, इससे अपने आप को भी अपवित्र किया है
और मुझको भी अपवित्र किया है। वैष्णव में भी जाति बुद्धि करते हैं, वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होती। जय भजो से बड़ो अभक्त ही चार, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति कुलानी विचार। कृष्ण भक्ति में जाति कुल का विचार नहीं है। तुरंत वस्त्र सहित कपड़े पहने हुए गंगा जी में स्नान करके और उसी गीले कपड़ों के साथ श्री संत गोस्वामी महाराज जी के निकट जाकर उनसे क्षमा मांगो कि आज कितनी बड़ी अपराध की बात तुमने कही है। ये तो रोने लग गया और रोते 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 गंगा जी में स्नान करके वैसे गीले कपड़ों में ये पूज्यपाद श्री संत गोस्वामी महाराज जी निकट आए और क्षमा मांगी। कहा कि आप मुझको दीक्षा ग्रहण कीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए। मुझको पूरी गोस्वामी महाराज ने ऐसा कहा है। तो जब श्री संत गोस्वामी महाराज जी ने सुना, बोलते तुम पागल है, इतने बड़े गुरु जी के पास तुम गए, वो मेरे भी शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि गुरु महाराज ही श्री संत गोस्वामी महाराज जी को उनके घर से लेकर आए थे। वो तो मेरे गुरु तुल्य हैं। जाओ पूरी गोस्वामी महाराज के पास जाओ और उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करो। वो बालक फिर गुरु महाराज के निकट आया। गुरु महाराज ने कहा नहीं, मैं नहीं, संत गोस्वामी महाराज ही दीक्षा देंगे। फिर वो संत गोस्वामी महाराज के निकट आया। फिर संत गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि देखो, यदि पूरी गोस्वामी महाराज आदेश देंगे तो उस आदेश को पालन करके तो मैं दीक्षा ग्रहण दूंगा, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तो गुरु महाराज जी ने बड़े हाथ जोड़कर विनती कही और कहा, श्री संत गोस्वामी महाराज से कहना कि मैंने प्रार्थना की है, आदेश नहीं, मैंने प्रार्थना की है। बस इस प्रार्थना शब्द सुनकर ही पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी ने इसको अपना आदेश माना और फिर उस बालक को दीक्षा ग्रहण की। इससे गुरु महाराज की एक महीना अमानी ना मान देना, अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता को भी वो उतना ही मान देते जितना अपने बराबर मानते। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में देखा गया, जिसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में नतमस्तक हुआ और जिन्होंने उनकी सेवा की है, गुरु महाराज ने उन सबको ही एक समान अपना गुरु तुल्य माना है। ये आदर्श है, अमानी न मान देना कीर्तन सना है। एक आदर्श है। गुरु महाराज के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हुए, उनके प्रति तो आदर है ही, लेकिन जो उनसे कनिष्ठ भी हैं, उनके प्रति भी गुरु महाराज नतमस्तक होते थे। इससे श्रेष्ठ आदर्श और क्या हो सकता है। और ऐसे ही पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो कि गुरु महाराज के गुरु भ्राता के भी आश्रित हैं। श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। गुरु महाराज जब कलकत्ता में काली घाट मठ में जब रहते थे, महाराज तो साक्षी है इस वस्तु के कि कैसे गुरु महाराज जब अपने कक्ष से नीचे आते थे और मठ से बाहर जाना होता था, तो मठ के आचार्य को प्रणाम करके बाहर जाने की वहां पर एक रीति होती थी। अब गुरु महाराज तो उनके गुरु तुल्य हैं। किनके? श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु तुल्य हैं। परंतु एक आदर्श है कि मठ के आचार्य को प्रणाम करके जाना है। इसलिए गुरु महाराज जब नीचे आए और श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के कक्ष में जाने लगे, तो उनके सेवक ने कहा कि गुरु महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज उसी समय उनके कक्ष के बाहर ही, दरवाजे के बाहर ही प्रणाम करके ये बोलकर जा रहे कि महाराज हमें किचु का बाहर जाओ, एक तो बड़े चले आपको, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा फिर लौट के आऊंगा, ये बोलकर जा रहे हैं। महाराज को नहीं, दरवाजे के आगे खड़े होकर प्रार्थना करके जा रहे हैं। इससे अधिक और क्या अमानिना मान देना होगा, इससे अधिक और क्या कर्नाटकी का आदर्श होगा। ये गुरु महाराज का हमारा आदर्श है। अब इसके बाद श्री भक्ति वेदांत सुबक महाराज अपनी हरिकथा जोर से बोलो, गुरु महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की। अच्छा, जैसे जैसे पूज्यपाद गोदाई महाराज जी कह रहे हैं, वैसे वैसे ही कार्यक्रम चल रहा है। और महाराज जी की इच्छा है ये दोनों संकीर्तन करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर महाराज जी कथा को कुछ कहकर विश्राम देंगे। आप दोनों आ जाइए अपने स्थान पर। मैं आप सभी वैष्णव से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कर रहा हूँ। वृंदावन से दिल्ली जाते हैं तो मार्ग में फरीदाबाद आता है,
वहाँ पर श्री राधा माधव गौड़िया मठ, जिसकी स्थापना 2007 में हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के एक छोटे से घर में हुई थी। और गुरु जी की इच्छा थी कि वहाँ पर एक मठ बन जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रचार हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, सब बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वो गुरु जी का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। और कार्तिक के अंत में, कार्तिक समाप्त होगा 15 नवंबर को, 16 और 17 नवंबर को श्री राधा माधव गौड़िया मठ का उद्घाटन, इनॉग्रेशन होगा। मैं मठ से, सभी मठों से आए सभी सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी गृहस्थ भक्तों को भी प्रार्थना करता हूँ, 17 नवंबर रविवार के दिन सुबह महाप्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा, मठ प्रतिष्ठा, हरि कथा और फिर महाप्रसाद, ये सब होगा। और आपको सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कालियादा से हम एक बस अरेंज कर रहे हैं। सुबह 5 बजे कालियादा से 17 नवंबर को बस चलेगी। आप सब लोग वहाँ पर आ जाइएगा और वही बस आपको फिर मठ में ले आएगी फरीदाबाद, और प्रसाद के उपरांत वही बस आपको फिर वृंदावन कालिया तक ले आएगी। उस बस की व्यवस्था भी हमने कर दी है। अधिक जानकारी हम आपको मठ में आकर दे देंगे। हरे कृष्ण।